السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 3.4 ایکسرسائز کویسچن نمبر 2 آج ہم کرنے لگے ہیں، جس میں ہم نے مسئلہ ترکیب و تفصیل کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس ایکسپریشن یعنی کہ m جمع 5n بٹے m مائنس 5n اور جمع m جمع 5p بٹے m مائنس 5p کی ہم نے قیمت معلوم کرنی ہے۔ ہمیں صرف m کی قیمت بتا دی گئی ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے، پہلے ایکسپریشن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں m جمع 5n اور m مائنس 5n ہے۔ اب اس m کی قیمت کو دیکھیں تو 10np ہے۔ یہاں سے مجھے 5n کسی طریقے سے اوپر مخرج میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو 10np کو m از اکول ٹو 5n انٹو 2p لکھ سکتا ہوں بٹے n جمع p، کیونکہ 5 دونے 10 ہوتا ہے، np آ جائے گا۔ اب اگلا کام یہ کریں گے کہ یہاں اگر 5n اوپر کھڑا ہوا ہے یعنی کہ مخرج میں کھڑا ہوا ہے، تو یہ جب لیفٹ سائڈ پر آئے گا، بائیں طرف جب آئے گا تو یہ تقسیم میں آ جائے گا۔ یہاں یہ ضرب کھا رہا ہے، ادھر تقسیم میں آ جائے گا۔ تو m بٹے 5n برابر ہے 2p، یہاں بچ جائے گا کیونکہ 5n ہم یہاں نیچے لے کے آئے ہیں، بٹے n جمع p آ جائے گا۔ اب اس کے اوپر مسئلہ ترکیب و تفصیل ہم استعمال کریں گے۔ استعمال کرنے سے تو مسئلہ ترکیب و تفصیل یہ ہے کہ شمار کنندہ جمع مخرج بٹے شمار کنندہ مائنس مخرج برابر ہوتا ہے رائٹ سائڈ پر بھی جو شمار کنندہ ہو جمع رائٹ سائڈ والے مخرج اور بٹے شمار کنندہ مائنس رائٹ سائڈ پر موجود مخرج کے ایکول ہے۔ یہ ہے مسئلہ ترکیب و تفصیل، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہاں ہم اگر استعمال کریں تو لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس شمار کنندہ میں m ہے، مخرج میں 5n ہے۔ تو اس کو اگر ہم اسی طریقے سے ایکسپینڈ کریں تو میں اسے ایک دفعہ لکھوں گا m جمع 5n، شمار کنندہ m ہے، مخرج 5n ہے، اسی طریقے سے بٹے m مائنس 5n آج گیا، برابر ہے۔ اب رائٹ سائڈ پر بھی ہم وہی چیز استعمال کرتے ہیں، وہاں شمار کنندہ 2p ہے، مخرج کیا ہے n جمع p ہے۔ اب کیونکہ مخرج میں 2 رقمیں ہیں تو میں بریکٹ ڈالوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اسے بٹے میں لکھوں گا مائنس، تو اس مائنس نے اندر موجود علامتوں کو تبدیل کرنا ہے، اس لیے مجھے یہاں بریکٹ ڈالنی پڑے گی۔ اچھا بھی اب ہم اس کو حل کرتے ہیں، یہ چیز تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم لیفٹ سائڈ کو ہم نہیں چھیڑیں گے، اب رائٹ سائڈ کو ہم تھوڑا حل کر لیتے ہیں، جو ایک جیسی قیمتیں ہیں ان کو جمع یا مائنس کر لیتے ہیں، ایک ہی آنسر نکال لیتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، 2p جمع n جمع p آ جائے گا، نیچے آ جائیں 2p مائنس نے اندر ملٹیپلائی ہونا ہے ہر رقم سے، تو اندر والی تمام رقموں کی علامتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی، n بھی مائنس کا ہو گیا اور p بھی مائنس کا ہو گیا۔ اب یہاں ہمارا معاملہ صرف رائٹ سائڈ سے ہے جس کو ہم سولو کر رہے ہیں۔ دیکھیں 2p جمع کا ہے اور 1p جمع کا ہے، 2 اور 1 3 ہو گئے، 3p جمع n۔ اسی طرح نیچے آ جائیں تو 2p جمع کا ہے اور 1p مائنس کا ہے، تو 2p میں سے 1p مائنس ہو تو
जमा का p माइनस का n बचेगा। ये हमने किस चीज़ की वैल्यू हासिल की है, m जमा n जमा 5n और बटे m माइनस 5n, यानी कि इस चीज़ की। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक हो गया। इस चीज़ को जो m की वैल्यू थी इसे आप इक्वेशन नंबर a कह दें, क्योंकि इसी ने आगे यूज़ होना है, बल्कि ये है m की वैल्यू, इसको आप a इक्वेशन कह दें। ठीक है, क्योंकि जब मुझे 5n चाहिए था मखरज में, तो मैंने 10np को 5n और इंटू 2p लिखा है। लेकिन अब मुझे m जमा 5p में मखरज में, अगर मसला तरकीब व तफसील को हम देखें तो मखरज में मुझे 5p चाहिए। तो अब मैं इसे 10np को इक्वेशन a लेने से के बाद मसावात a लेने से, जब मैं मसावात a लूँगा तो m बराबर है 10np बटे n जमा p। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5p इंटू 2n बटे n जमा p। देखिए मैंने ऐसे क्यों लिखा है, उसकी वजह ये है कि मुझे अब मखरज में क्या चाहिए, 5p चाहिए। यहाँ 5p 2n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, या कह सकते हैं ये शुमार कुनिंदा में था राइट साइड पर, तो ये जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो ये मखरज में आ जाएगा। जिस तरह हम यहाँ 5n को नीचे लेके आए थे, अब मुझे 5p को नीचे लेके आना पड़ेगा ताकि तरकीब व तफसील को इस्तेमाल करते हुए मैं ये एक्सप्रेशन हासिल कर सकूँ, ये वाला। ठीक है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2n बटे n जमा p। अब हम इस पर मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से शुमार कुनिंदा में m है, जमा मखरज में 5p है, बटे शुमार कुनिंदा माइनस मखरज बराबर है। अब यहाँ भी शुमार कुनिंदा में 2n है, जमा मखरज में n जमा p है, बटे आ जाएं शुमार कुनिंदा माइनस n जमा p, यानी कि मखरज। ये हमें एक्सप्रेशन चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब फिर इसको हल करेंगे। जिस तरह यहाँ हमने इस एक्सप्रेशन की कीमत निकाल ली थी एक, तो इसको भी हम इसी तरीके से m और n और p की सूरत में एक वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं, जमा का है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वही का वही जमा n जमा p आ जाएगा। नीचे आ जाएँ तो 2n माइनस n माइनस p आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये 2n जमा का है, एक n भी जमा का है, तो कितने हो जाएंगे, 3n जमा p बटे आ जाएँ 2n जमा का है, 1n, एक n जो है वो माइनस का है, तो एक n हमारा हासिल होगा। और अब यहाँ माइनस p आ जाएगा, n माइनस p, जमा का n माइनस p। ये जो हमने वैल्यू, ये कीमत हासिल की है m जमा 5n बटे m माइनस 5n, यानी कि इस चीज़ की है। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन 1 में मसावात 1 में हमारे पास लेफ़्ट साइड पर m जमा 5n बटे m माइनस 5n है, और इसी तरह मसावात 2 की लेफ़्ट साइड पर हमारे पास m जमा 5n बटे m माइनस 5, यानी कि ये और ये है। मसावात 1 के लेफ़्ट साइड पर ये है, मसावात 2 के लेफ़्ट साइड पर ये है। यही चीज़ हमें हासिल करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मसावात 1 और 2 को जमा करने से, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये जमा की अलामत है।
मसावत 1 और 2 को जमा करने से, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इनको जमा करेंगे तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पर यही चीज़ आएगी, ठीक है। और राइट साइड पर हमारे पास क्या आएगी, m जमा 5n बटे m माइनस 5n, इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड, और जमा इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड, m जमा 5p बटे m माइनस 5p, ये बराबर हो जाएगा। अब राइट साइड देखें, मसावत 1 की राइट साइड में हमारे पास 3p जमा n बटे p माइनस n है, और जमा इक्वेशन 2 के राइट साइड पर क्या है हमारे पास 3n प्लस p बटे n माइनस p। अब हमें इस लेफ़्ट साइड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज़ हमें चाहिए। राइट साइड को हम हल करेंगे मज़ीद। अब इसको हल करने के लिए, क्योंकि दोनों रकमें बट्टे में हैं, तो इस तरह की रकमों को जमा या माइनस करने के लिए हमें ज़ुज़ाफ़े अक़ल या एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ जब मैं ज़ुज़ाफ़े अक़ल या एलसीएम देखता हूँ तो p माइनस n है, यहाँ n माइनस p है। फ़र्क सिर्फ़ एक अलामत का है, यहाँ p प्लस का है, यहाँ p माइनस का है, यहाँ n माइनस का है, यहाँ n प्लस का है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि प्लस का p आ जाए और माइनस का n आ जाए, इसी तरह की चीज़ बन जाए, ठीक है। फिर अगले स्टेप में जाकर हम इसका एलसीएम लेंगे। 3p प्लस n p माइनस n, अब 3n प्लस p ओवर, देखिए जब मैंने इसके मखरज में से माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का हो जाएगा n, और p जो है वो प्लस का हो जाएगा। प्लस वाली कीमत मैं पहले लिख लेता हूँ, और माइनस वाली माइनस n जो है वो बाद में लिख सकता हूँ। और ये वाला माइनस मैंने किधर किया है, ये माइनस और प्लस, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर आपके पास 3 ओवर माइनस 2 हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 3 ओवर 2, ठीक है। या आपके पास अगर माइनस 3 ओवर 2 हो, यानी कि शुमार कुनिंदा अगर हमारा माइनस में हो और मखरज आपका अगर प्लस में हो तो सारी रकम माइनस में हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका मखरज माइनस का है और शुमार कुनिंदा आपका प्लस का है तो भी सारी रकम माइनस की हो जाएगी। तो ये माइनस की हो गई है, तो माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके इसने सारी रकम को माइनस का कर दिया है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, p माइनस n मुझे पहली रकम के बटे में भी p माइनस n है, दूसरी रकम के बटे में भी p माइनस n है, तो क्यों ना हम इसको p माइनस n को ज़ुज़ाफ़े अक़ल ले लें। इसमें यही चीज़ आ जाएगी 3p प्लस n, और माइनस यहाँ भी 3n प्लस p आ जाएगा। अब यहाँ भी बाहर माइनस था, इस वजह से मैंने ब्रैकेटें दी है, और अब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो इस माइनस ने अंदर जाकर तमाम अलामतों को तब्दील कर देना है। 3p प्लस n माइनस 3n माइनस p ओवर p माइनस n। देखिए भाई 3p हमारा जमा का है, 1p हमारा माइनस का है, तो क्या आ जाएगा 2p। जमा का 1n है, माइनस का 3n है, तो माइनस का 2n हासिल होगा, बटे p माइनस n आ जाएगा।
ہاں بھائی 2p مائنس 2n میں سے میں 2 کامن لے سکتا ہوں، 2 آپ کامن لے لیں، مشترک لے لیں۔ 2 جب کامن آئے گا تو یہاں سے p بچے گا، ادھر سے مائنس n بچے گا، نیچے والا p مائنس n پہلے سے موجود ہے۔ اب p مائنس n سے p مائنس n میں کینسل کر سکتا ہوں، تو ہمارا آنسر کیا آیا ہے 2۔